press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to Finish Educare. Welcome to the first chapter of history. So this is the question bank that is given by Maharashtra board. So I'm going to solve the question bank. So today we will study the first chapter of history. Name of the chapter is Historiography Development in the West. Okay, so this is the question bank that is given by Maharashtra board. So I'm sure that you are aware of this question bank. So you have to only study the questions that are given in the question banks, and 100% these questions will come in the exam. So let us begin with the fill in the blanks or the multiple choice questions. So first question is, it may be said that Dash was the founder of modern historiography. So answer is Voltaire. Dash wrote the book Archaeology of Knowledge. Answer is Michael Foucault. Dialectus method was explained by Hegel. Okay. At the onset of 20th century, Dash school of historiography. So answer is Annales school. So, and it was started in France. Dash explained the class theory. Answer is Karl Marx. So identify the wrong pair and rewrite the correct one. So this is the question. So the wrong pair is Karl Marx Discourse on Method. So book written by Karl Marx was Das Kapital. Second is René Descartes, founder of modern historiography. So we know that the founder of modern historiography is Voltaire. All the rest of the pairs are correct. Karl Marx class theory is correct. Michael Foucault Archaeology of Knowledge is correct. George William Friedrich Hegel Dialectus. So here also answer is given. Same question is repeated. Dialectus Hegel, George William Friedrich Hegel. Then third question, the physical and natural sciences empirical method. This is correct. Modern historiography scientific method. Yes, it is correct. Then Göttingen University and Independent Department of History. This is correct. Annales School, British historians. This is wrong. Annales School was started by French historians. Here also it is given. Okay. School of Historiography in France given new direction to history writing. So all the answers are given here. You can guess. Okay, or you can eliminate one option and you can come to a conclusion that this is the correct option. Next question is, complete the following concept map. Okay, so the question is various disciplines useful in historical research. So answer is given here. If you come to the second page, so here you can find the answer. Methods of various disciplines are useful in historical research. So the answer is, you can write any four names. So archaeology, archival science, epigraphy, analysis of lettering style, linguistics, numismatics, genealogy. You can write any four. So all these things are useful in studying history. Then concept map, notable scholars in Europe. So René Descartes, Voltaire, Leopold von Ranke, then Karl Marx, Michael Foucault. You can write any four. Easy वाला लिखो, जो भी आपको spelling easy लगता है वो लिखो. Then complete the following table. Books. The Histories book was written by Herodotus. Discourse on the Method. This book was written by René Descartes. Das Kapital was written by Karl Marx. Archaeology of Knowledge was written by Michael Foucault. तो ये सब उसका correct answer है. Then complete the following table. Personalities and special features. Voltaire is called as the father of modern historiography. Simon de Beauvoir, the fundamentals of feminism. Michael Foucault brought forth a new concept of historiography. Karl Marx class theory. एक माइकल फोकॉल्ट का थोड़ा कंफ्यूजन है, तो अगर आप जाके देखोगे टेक्स्ट बुक में तो माइकल फोकॉल्ट के यहाँ थोड़ा आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो. सो माइकल फोकॉल्ट ने क्या बोला, ब्रॉट फॉर द न्यू कंसेप्ट ऑफ हिस्टोग्राफी, और उसने ये क्या बोला था वो भी आप लिख सकते हो. ड्रू अटेंशन टू द फैक्ट दैट आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट. ये सब भी आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो ताकि आपका आंसर करेक्ट आ सके. ओके, देन राइट अ शॉर्ट नोट. ये सब आपके पास पहले से आंसर होंगे, तो मैं फटाफट दिखाता हूँ कहाँ इसके आंसर्स है टेक्स्ट बुक में. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायलेक्टिस. सो डायलेक्टिस के बारे में डायरेक्टली यहाँ पैराग्राफ दिया है, तो ये आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है. तो 2 मार्क्स के लिए कम से कम आपको 4 पॉइंट्स तो लिखना ही चाहिए. एनालिस स्कूल, अगेन डायरेक्टली आपको ये पैराग्राफ पूरा लिखना है. ओके, देन द हिस्टोरियन का काम क्या होता है, तो उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है. हिस्टोरियन कौन होता है, उसका काम क्या है, यहाँ दिया हुआ है. ओके, so person who is writing a historian cannot include every past narrative. यहाँ से लिखना है आपको. The writing of critical historical narrative is known as historiography. A scholar who writes such a narrative is called as historian.
और 2-3 पॉइंट आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ये पैराग्राफ भी आप ऐड कर सकते हो। उसमें कम से कम आपको 4 पॉइंट तो लिखना है। रेने डेस्कार्टेस के बारे में डायरेक्टली आपको यहाँ दिया हुआ है। रेने डेस्कार्टेस का बुक याद रखो कौन सा लिखा है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। उसके बाद और एक बुक है, और एक उसने बोला है कि नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू अनटिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। ये यहाँ से पूरा आप लिख सकते हो, 4 पॉइंट्स बना के लिखो। देन गिव रीजन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ इट्स रीजन। In historical, it may not be possible. In historical method, it may not be possible to use method of laboratory experiments and observation. तो यहाँ दिया हुआ है कि हिस्ट्री जब भी स्टडी करते हैं तो अभी हम लैबोरेटरी के जो मेथड्स है यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ से आंसर है, इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज द एम्पेरिकल मेथड और लैबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड। तो लैबोरेटरी में कैसा है कि हम लोग बार बार उसको टेस्ट करते रहते हैं और प्रूव करते हैं कि ये चीज़ सही है, लेकिन हिस्ट्री में वैसा हम टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो भी चीज़ें हैं पहले हो चुकी है, सो वापस हम रिक्रिएट नहीं कर सकते हिस्ट्री में। सो यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है, दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज दैट रिमेन ट्रू। ये जो लैबोरेटरी मेथड में जो लॉज है वो बार बार हम प्रूव कर सकते हैं। दोज लॉज कैन बी टेस्टेड एंड प्रूवन रिपीटेडली। बट इन हिस्टोरिकल रिसर्च ये आपको 2 पैराग्राफ लिखना है, ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ उसके आंसर में आएगा। ओके, हिस्टोरिकल मेथड में हम बार बार प्रूव नहीं कर सकते, हमें अप्रोच अलग होता है हमारा स्टडी करने का, हिस्ट्री स्टडी करने का। द हिस्टोरिकल रिसर्च वॉज ड्रिवन इन फोकस इन द डेप्थ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वुमेन लाइफ। वुमेन लाइफ के बारे में यहाँ डायरेक्टली पैराग्राफ दिया हुआ है। ये मैं सब ऊपर से आपको आंसर बता रहा हूँ, आपके पास ऑलरेडी आंसर्स होंगे तो वो आप फॉलो करो। सो यहाँ दिया हुआ है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में उसके आंसर है। देन Foucault called its method archaeology of knowledge. So archaeology of knowledge माइकल फोकॉल्ट का, यहाँ मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो ये archaeology of knowledge, उसका मानना क्या था कि जो हम आर्कियोलॉजिकल साइंस यूज़ करते हैं वो आर्कियोलॉजिकल साइंस में से हमें 100% इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकता है। सो he drew the attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempts to explain various transitions in past. उसी में हमें पास्ट के बारे में बताता है, वो ट्रुथ नहीं बताता कि 100% वो करेक्ट है कि नहीं। तो उसने बोला कि ये चेंजेस है, ट्रांजिशन है, उसने अपना बुक लिखा है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये आपको ये पैराग्राफ लिखना है उसके बारे में। ओके, सो ये आपके पास आंसर होगा शायद, तो ये आप उसमें से रिफर करो। मैं सिर्फ आपको क्या पॉइंट्स आना चाहिए वो बता रहा हूँ। इट इज सेड दैट वोल्टेयर वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। सो वोल्टेयर के बारे में डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है। वोल्टेयर ने क्या किया, जो तरीका था हिस्ट्री लिखने का वो चेंज कर दिया। सो यहाँ से लिखना है, he opined that along with objective truth and chronology of historical events, considering social traditions, trade, economy, etc. was equally important. So पहले क्या लिखते थे हिस्ट्री में, सिर्फ वॉर के बारे में लिखते थे। वोल्टेयर ने वो चेंज कर दिया। वोल्टेयर ने बोला कि हमें इकोनॉमी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में भी लिखना है। ओके, इट गिव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट। सब एस्पेक्ट्स है लाइफ के, उसके बारे में, सबके बारे में लिखना है। सिर्फ किंग के बारे में, उसके अच्छी बातों के बारे में लिखना नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेयर इज कॉल्ड एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। ये आपको कंक्लूड करना है, यहाँ से आप लिख सकते हो, ही की जगह वोल्टेयर लिखो, वोल्टेयर ओपेन दैट, और यहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। देन इट इज सेड दैट वोल्टेयर वाज फाउंडर ऑफ, वहाँ ये तो हो गया। ओके, देन यहाँ से जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं। इन विच कल्चर डिड द ट्रांजिशन ऑफ राइटिंग डाउन हिस्टोरिकल इवेंट्स टेक प्लेस। तो यहाँ दिया हुआ है, सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया से ही स्टार्ट हुआ कि वो लिखने लगे, समर सिविलाइजेशन। आंसर आएगा समर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया, यहाँ से आएगा समर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। देन इन विच म्यूजियम इज द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड। सो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन इज फाउंड इन लोअर म्यूजियम, इट इज इन फ्रांस। एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन हाउ द इंस्क्रिप्शन इज सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अभी इंस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होता है कि एक स्टोन के ऊपर कुछ कार्विंग किया होता है। तो जब भी हम कार्विंग, पुराना कार्विंग होता है, जब भी हम कार्विंग वो स्टडी करते हैं तभी हमें पता चलता है कि क्या चेंजेस हुआ था, क्या उस टाइम हुआ था। जैसे यहाँ जो समरन सिविलाइजेशन का जो इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है उसमें लिखा है कि तभी वॉर हुआ था। सो इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ बैटल फॉट बिटवीन 2 किंगडम्स। तो हमें कैसे पता चला कि इतने ये साल में बैटल हुआ था, तभी हमने वो इंस्क्रिप्शन देखा। सो इट इज इंस्क्रिप्शंस आर ऑल्सो हेल्पिंग अस टू स्टडी हिस्ट्री। सो दिस कैन बी कॉल्ड एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इंस्क्रिप्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अगेन लॉन्ग आंसर, इसमें आपको 8 पॉइंट्स लिखना है। ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, 8 पॉइंट्स तो मिनिमम आपको लिखना ही है। नहीं तो टेक्स्ट बुक में जितना लिखा है उतना जितना दिया है उतना लिखो। एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थियरी। क्लास थियरी डायरेक्टली दिया हुआ है कार्ल मार्क्स का, यहाँ से आपको लिख सकते हैं। ह्यूमन रिलेशंस आर शेप्ड बाय फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल, ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उसने बोला कि 2 क्लास होता है सोसाइटी में,
एक होते हैं जिनके पास सब प्रॉपर्टी होता है, सब रिसोर्सेस होता है, दूसरे होते हैं जिनके पास नहीं होता है, हैव्स एंड हैव्स नॉट। तो उसने बोला कि हिस्ट्री मतलब क्या है, ये दोनों क्लास का स्ट्रगल है, यही हिस्ट्री है, ये उसने लिखा है, ये आप उसकी बुक में, दास कैपिटल बुक में लिखा हुआ है, तो ये आप लिख सकते हो। देन व्हाट आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, डायरेक्ट आंसर है इसका, मॉडर्न हिस्टोग्राफी की जो 4 कैरेक्टर्स है यहाँ उसका आंसर है ये, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स आपको लिखना है। देन व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, डायरेक्टली जो आंसर दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया है, वो पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के लिए क्वेश्चन आया तो। देन एक्सप्लेन लियोपोल्ड वॉन रंके's पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, अभी लियोपोल्ड वॉन रंके हिस्ट्री के बारे में क्या सोचता था। अगर ये 4 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो आपको जितना टेक्स्ट बुक में दिया है उतना पूरा लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड में कैसे लेंथ भी मैटर करता है क्वेश्चन आंसर का। देन राइट द स्टेजेस ऑफ अरेंजिंग हिस्ट्री इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, इसका भी आंसर दिया हुआ है, ये शायद टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में नहीं है, अलग से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको याद करना है। अब ये पूरा आप याद नहीं कर सकते हो, सो मेन पॉइंट्स याद रखो, और मेन पॉइंट्स को ही सिर्फ याद रखो, बस पूरा याद नहीं रख पाओगे, बाय हार्ट नहीं हो पाएगा, सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखो, उतना लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। और ये था फर्स्ट चैप्टर, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। ऐसे ही मैं आगे के भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस और आंसर डिस्कस करूँगा। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, और सब्सक्राइब करने के टाइम बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।